and I have got two things to do, since many of the faculties and many of the some of the senior residents might be sitting and the future PG students who are going to be senior residents. So, I will talk something about 5 minutes about the National Academy of Medical Sciences, which luckily I am a chairman of the state of Uttar Pradesh, and my office is situated in my own department, same room when I was staying. ताहिर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं अक्सर ये स्लाइड बहुत दिखाता हूँ, ये मैंने when I was in Japan I learned this, better than 1000 days of diligent studies, one day with great teacher. I am not saying I am a great teacher. What I am seeing that large amount of bunking in the classes, students don't attend classes, who come they are not attentive in the classes. That's not good thing, because this is famous. If any teacher comes with some preparation, he comes with maybe 100 books. So please, I ask every vice chancellor now, please use this proverb so that the bunking can be reduced to some extent. So, and I said these words for my own mentors, Professor, I always say regards to him, and many more mentors, and many of them are not alive today, but some who are alive is Professor, I still recommend Professor P.N. Tandon, N.K. Ganguly Sahab. I happens to work with them at many occasions. I have really mentored by him. So today what I am not taking lecture, I am somehow mentoring, because my role now at this age is not only as a teacher but as to mentor people. And these are the institute, you know, I will not waste time. I am talk about maybe about 3 to 4 minutes about the National Academy. So please listen very carefully, and आपको बड़ा एक्टिवली काम करना है इस पे अपने 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 विभाग में। वैभव आप भी बैठे हो, आप मेडिसिन के हेड हैं? So what is National Academy? I always say it's a pride to be associated with National Academy. It's a pride for ERA Medical College and ERA University that this is a part of a National Academy, being chairman of state of Uttar Pradesh. You know, all the big leaders, the academy was inaugurated by then Prime Minister of the country. First convocation was addressed by then President, and many activities. What I am trying to, I will focus on one slide which may be of how you can be associated with academy. That is my prime job today for a National Academy. As senior people can become fellow. वैभव बैठे हैं, ताहिर साहब बैठे हैं, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहता हूं आप अपना फॉर्म भरें, बिना फॉर्म भरे कुछ नहीं मिलेगा। I became fellow in 2005. Let me share, I was the 5th chest physician of this country to become fellow of National Academy. उस वक्त केजी के लोग बनते कहाँ थे? तो आप एरा में करें ना। We have got 3 fellows in ERA. किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फेलो नहीं है, मैं जानता हूं पूरे यूपी को। अब्बास साहब इज वन, फरजाना बिकेम लास्ट ईयर, सी बिकेम फेलो, एंड आई एम फेलो, आई हैव सेड सिंस 2005. सो फेलो सीनियर लोगों के लिए, मेंबरशिप सबके लिए, जो फैकल्टी है 5 साल हो चुके हैं, 3 पब्लिकेशन है, गए गुजरे का भी 3 होगा। अब यू कैन गो ऑन टू वेबसाइट, अप्लाई, मिलेगी आपको, इतना मैं श्योर करता हूं। एक एसोसिएट फेलो यहाँ डीएमएमसीएच ज्यादा होते नहीं, लेकिन डीएमएमसीएच के लिए एक नया क्लास पिछली साल से ला दिया गया। आई बीइंग द काउंसिल मेंबर, सो आई नो ईच एंड एवरी डिटेल। डीएनबी के बाद ऑटोमेटिक मेंबर मिल जाती है, तो एमडी एमएस, जो एमडी एमएस और एमडीएस हैं, कल सिद्धार्थ बैठे थे, आज पता नहीं कोई डेंटल वाला है, नहीं होगा, उनके लिए भी। ताहिर साहब आप सुनिए, आप चूंकि सारा रेजिडेंट को आप ही कंट्रोल करते हो, हैं, तो उनके लिए एसोसिएट मेंबर हैं। अभी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा एसोसिएट मेंबर क्या होता है। वो जिसने एमडीएमएस कर लिया है, एमडीएस कर लिया, ही कैन बिकम एसोसिएट मेंबर। इमेरिटस प्रोफेसर बहुत सीनियर लोग, लकली आई एम आल्सो इमेरिटस प्रोफेसर। आई एम द ओनली इमेरिटस प्रोफेसर इन पल्मोनरी मेडिसिन थ्रू आउट इंडिया एट प्रेजेंट। सो दैट इज हाउ यू कैन बी एसोसिएटेड। मैं एक स्लाइड यूज करूंगा, ये जो एसोसिएट मेंबर,
जो लोग एमडी, मैंने ऋषभ और ये लोग बैठे हुए हैं, कई दिनों से कह रहा हूं, सुन नहीं रहे हैं सब, हैं? तो ये एसोसिएट मेंबर कौन बन सकता है? देखिए इसमें सब लिखा हुआ, जो पहले अटेम्प्ट में एमडी, एमएस, एमडीएस किया हो। कौन फेल होता आज के ज़माने में? हमारे ज़माने में फेल होते थे, हैं? उसके बाद उसका एक पब्लिकेशन हो, या एक साइंटिफिक जर्नल में, या एक अपने एसोसिएशन का मेंबर हो, या उसमें एक पेपर प्रेजेंट किया, बहुत इजी बना दिया गया है। दिस लास्ट ईयर दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आवर काउंसिल मीटिंग्स। और इसके जो फॉर्म है वो फेलो के पास नहीं जाना पड़ता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर सकता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कर सकता है, हेड ऑफ यूनिट भी कर सकता है। और कोई दिक्कत हो आप लोग मेरे पास आइए, आई विल सपोर्ट। हम कर नहीं सकते क्योंकि हम काउंसिल मेंबर हैं, लेकिन आई विल प्रोवाइड कि क्या इन्फॉर्मेशन। प्लीज मेक श्योर, ताहिर साहब, मैं आप ही, चूंकि प्रिंसिपल साहब नहीं हैं तो आप ही से मैं कह रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा एक्टिव होइए और लोगों को इस नेशनल अकेडमी सेंट्रल लेवल पर कहा जाता, आपका एरा मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, और आप सर वहां हो, तो प्लीज ताहिर साहब, आई रिक्वेस्ट यू। तो दैट्स अबाउट। और मैं आपको कुछ नए नेशनल अकेडमी कन्वोकेशन होता है, बहुत बढ़िया, अभी भी गवर्नर्स लोग आते हैं। लास्ट ईयर हम लोग भी काउंसिल में, हम काउंसिल मेंबर हैं, हम लोग भी थे उसमें। तो अभी भी दूसरा काम नेशनल अकेडमी का सीएमई, अभी जमाल साहब नहीं है, 4 सीएमई यहाँ एरा में हो चुकी है, यानी लगभग 8 लाख रुपए एरा को मिल चुका होगा नेशनल अकेडमी। सो यू प्लीज प्लान सीएमई फॉर 6 आवर्स, यू कैन गेट मनी एंड यू कैन बी एसोसिएटेड। और मैं आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा, बहुत डिटेल है, लेकिन आई जस्ट स्किप। स्टेट चैप्टर मैं बता रहा था, पिछले कुछ लोगों ने, आप लोगों ने पिछले साल का फंक्शन अटेंड किया होगा स्टेट चैप्टर का। देखिए हु इन लखनऊ सभी इसी एरा कॉलेज के लिए मेरे ख्याल से वो गोल्डन डे था उस दिन, हैं? कि सभी वीसी, केजीएमयू, डायरेक्टर पीजीआई, फरजाना, ये डॉक्टर बेहरा बैठे हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं। सो दैट वाज इनाग्रेटेड एंड दिस इज स्टेट सेल्फ सिचुएटेड।